my would-be professors, assistant professors, right? We are dealing with नेट सेट इन कॉमर्स, right? तो आज हम लोग लेंगे अपना सिलेबस किस चीज़ का हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की अकाउंट्स के लिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, सर कब का पढ़ा था याद नहीं है, राइट? सो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोले तो सर अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स क्या अकाउंट्स ऐसे ही कुछ भी लिखना है? डू यू फील? नो। क्या अकाउंट सिस्टमैटिक है? यस। क्या अकाउंट मॉडर्न है? नो। पहले भी लोग हिसाब करते थे, अभी भी करते हैं। व्हाई इट इज डन? इज अकाउंटिंग डन ओनली फॉर टाइम पास और टू नो समथिंग? यस सर, टू नो समथिंग। व्हाट? द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बराबर है। ह्यूमन ब्रेन इज हैविंग अ लिमिट टू रिमेंबर। वो ज्यादा याद नहीं रख सकता बा। कल हम लोग ने क्या खाया है वो हमें आज याद नहीं रहता, आज दोपहर को क्या खाया वो रात को याद नहीं रहता, लेकिन गाली किसने थी वो याद रहती है। वह इंसान है साला, बहुत मतलबी है ये। नेगेटिव चीजें याद रखता है, पॉजिटिव याद नहीं रखता। बरा वो चीज गलत है हमारी। देखो लाइफ का बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए अपना। बरा अकाउंट्स कर रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो अपने लाइफ के हिसाब भी अपने को रखने हैं, राइट? सो अकाउंटेंसी बेसिकली records the transaction. Which transaction? Monetary transaction. Why? To know the profit or loss of the business. Not always profit है ना, कभी लॉस भी हो सकता है। बिजनेस है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। द वन हु टेक्स द रिस्क सक्सेस इज इन द बिजनेस। बिजनेस may give you profit, business may give you loss, correct? So what is it basically? Accounting is the language of business. आप बैलेंस शीट देख के समझ जाते हो ना whether the business is profitable or in loss. आप पीएनएल देख के समझ जाते हो कि इनकी खुद की इनकम कितनी है, बाहर की इनकम कितनी है। ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप बैलेंस शीट देख के समझ जाते हो कि इनका खुद का कैपिटल कितना है, लोगों से मांगा हुआ कितना है, ओन फंड एंड बोरोड फंड। एम आई राइट? सो विदाउट टेलिंग एनीथिंग, द अकाउंटिंग इज टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। इसलिए क्या बोला? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, provides financial information to the users, helps in decision making, correct? AAA का definition है process of identifying, measuring and communicating economic information. Okay? AICPA के according art of recording, classifying, summarizing transactions. Objectives of accounting: why you do accounting? To maintaining records, determining the profit or loss, determining financial position, assisting management, providing information to stakeholders. Stakeholders what? Stakeholders बोले तो anyone who is connected with the business. It may be your owner, it may be only investor, it may be your employee, it may be your customers, it may be your competitors, it may be the government, it may be anyone from XYZ from the society. Okay, anyone related to the business, that is stakeholders. Okay, meeting legal requirements. Yes, every business is supposed to disclose the profit according to the rule, and just to fulfill that legal requirement we have to do the accounting things. Functions of accounting: what is it? Recording, yes. Classifying, क्या आपने सारे एक्सपेंस एक ही हेड में डाल दिए, क्या अलग अलग किए? अलग अलग किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिमेंबर FY BCom, perfect, very good. Right? Summarizing, we have recorded everything in shorts, right? Either in subsidiary books or ledgers, correct? क्योंकि वो जर्नल एंट्री 365 दिन की, रोज की अगर 10 पकड़ो तो भी 3700 650 इतनी एंट्री याद रखना पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ब्रेन्स को, राइट? एनालाइजिंग, yes, it helps to analyze, interpret, to come out with some concrete solutions, and communicating. Yes, am I clear till now? Very good. Users of accounting, so who are the persons using the accounting of the business? So very first, internal users, that is management, employees and owners. External users, investors, creditors, banks, government, customers and researchers. All these collectively are known as stakeholders. Perfect? Okay, so if the question is coming, creditors are the dash stakeholders, so external stakeholders. Employees are the dash stakeholders, internal stakeholders. Okay, dash are the internal stakeholders of the accounting. Options में आ गया है management, customers, government and researchers. Answer should be management. Done. Accounting principles.
अब अगर गेम खेलते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, बराबर. सिमिलरली इवन फॉर अकाउंटिंग यू नीड सम प्रिंसिपल्स. व्हाट आर देम? फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग, ensures uniformity and consistency. बराबर, रूल्स मैंने बोला ना. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स तो कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ बेसिक एजम्पशंस है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, कुछ बेसिक कंसिडरेशंस है. ओके, तो एक है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. लॉस मेरा हुआ या बिजनेस का हुआ? बिजनेस का हुआ. प्रॉफिट मेरा हुआ या बिजनेस का हुआ? बिजनेस का हुआ, जो मैं लेने वाला हूं. सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द बिजनेस. बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि बिजनेस में इतना डूब मरते हैं कि पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं. नो, it's your business. Give only that much time which the business deserves. Don't lose your own existence because you and your business both are separate. So that is business entity concept. Then business is separate from the owners. Okay, personal transaction not recorded in the business. बीवी को कितना दिया शॉपिंग के लिए वो मैं बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता नहीं. बराबर है. yes. या ससुर ने कितना दिया मुझे गिफ्ट में वो मैं यहाँ पे नहीं ला. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. यस, एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड इन मनी. कितना श्राप लिया, कितना आशीर्वाद लिया, कितना पुण्य कमाया, कितना पाप किया, वो सब यहाँ पे अकाउंट्स में आने वाला नहीं है. यस, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आर इग्नोर्ड. देन गोइंग ऑन कंसेप्ट. आर यू डूइंग बिजनेस ओनली फॉर 1 year or it should be on and on and on and on and on and on, right? So it's going on concept. Business assumed to continue indefinitely. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में आखिरी एकदम मैं जा रहा हूँ ऐसा करते वक्त तब मैं हिसाब करने बैठू क्या बिजनेस का? उधर ऑलरेडी मेरा हिसाब हो चुका है, लकड़े लगा के हो गए, और मैं तभी बिजनेस का हिसाब करूंगा? नॉट पॉसिबल. So for the convenience, what I'm doing, I'm dividing the whole life of the business in period of one year, which is normally known as financial year या accounting year, right? So that is accounting period. Life of the business divided into accounting periods. Cost concept, right? मैं 10 में खरीद के 15 में बेचा तो ही मुझे पता चला ना कि 5 रुपया प्रॉफिट है. तो जब तक मुझे कॉस्ट पता नहीं है, कैन आई डिसाइड द प्रॉफिट और लॉस? नो. Asset recorded at acquisition cost, right? So knowing the cost is very very important. Dual aspect. हर transaction के कितने इफेक्ट है? 2. So that is dual aspect. Okay. Accounting equation. What is it? Asset is equal to capital plus liability, right? इसी को अगर एक्सपांड करना हो तो कैपिटल में क्या क्या आया? कैपिटल आया बोरोइंग्स आया, ड्रॉइंग्स, यस, क्या किया था हमने? लेस. करेक्ट. प्रॉफिट आया, हाँ, क्या किया हमने? ऐड. लॉस आया कभी कभी, क्या किया हमने? लेस. सो कैपिटल कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड एज कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व्स लेस लॉसेस लेस ड्रॉइंग्स, राइट? तो देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव टू कनेक्ट. जो सम में सॉल्व किया ना वो याद रखो, थियरी अपने आप बन जाती है अकाउंट्स की. ओके. रियलाइजेशन कंसेप्ट. यस, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर एंड दे हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न. ओके. मैचिंग कंसेप्ट. माय एक्सपेंस इज योर इनकम, योर एक्सपेंस इज माय इनकम, राइट? मैं जितना खर्चा कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली कमा रहा हूं. सो दैट इज एक्सपेंस मैच विथ रेवेन्यू. मैचिंग कंसेप्ट. डन. अक्रूवल कंसेप्ट. यस, कितना देना है, कितना लेना है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हमने रिकॉर्ड किए या नहीं किए? सर किए. दैट इज व्हाट अक्रूड कंसेप्ट इज, राइट? इनकम एंड एक्सपेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, राइट? मुझे आप लोग ट्यूशन के लिए आ रहे हो, फीस देने वाले हो, ठीक है, मेरी इनकम हो गई. नहीं दिया तो वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, दिया तो मेरा इनकम हो गया. बट एज्यूम क्या कर रहा हूँ, इतना मेरा रिसीवेबल है. करेक्ट. ईयर एंड पे हम लोग बताते हैं ना रिसीवेबल्स. वेरी गुड. यस. अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. जमा करना है कि छोड़ देना है संन्यास लेके? जमा करना है, राइट? एंटिसिपेट लॉस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट. करेक्ट. कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. एक साल या बहुत सारे साल? बहुत सारे साल. सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड एवरी ईयर. बराबर है. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. छुपा छुपी चलेगा क्या? नहीं. Every business is running on the trust of someone else who have invested in your business, right? So no hidden aspects. Everything should be shown very clearly. बराबर. छप्पा छुपी लप्पा छुपी करने का नहीं, तो डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा. बराबर है. कन्वेंशनल मटेरियलिटी. इंपॉर्टेंट आइटम शुड बी सेपरेटली रिपोर्टेड.
Yes, accounting standard. What are accounting standard? These are the basic rules or regulations given to maintain the accounts. AS1 क्या बताता है? बिजनेस पॉलिसी. AS2 क्या बताता है? स्टॉक वैल्यूएशन, बरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन. AS3, AS6, AS5 अगर बहुत सारे हैं, तो उसमें से सब नहीं करने, लेकिन हमें मेन करने पड़ेंगे. थोड़ा सा बाय हार्ट करके जाना, थोड़ा सा इसके ऊपर ग्लांस डाल के जाना, सो दैट इसके ऊपर कुछ पूछ लिया तो आप लोग उसके आंसर्स लिख पाओगे. ओके, सो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंश्योर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी. करेक्ट. कुछ टेक्स्ट बुक्स इससे ज़्यादा भी बोलेगी. मैंने पहले भी बताया कि मैं एआई की मदद से कर रहा हूँ, तो जितना इधर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, मैक्सिमम ही दे रहे हैं. बट अगर कुछ टेक्स्ट बुक में और एक्स्ट्रा है तो प्लीज रेफर दैट. ओके, once the understanding is done from our video, you can read any XYZ material and make it firm permanently. Standard setting authority in India कौन कर रहा है? ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. बराबर है. Issuing accounting standards, Indian accounting standards, INDAS, ये भी कौन कर रहा है? ICAI प्लस IFRS प्लस वर्ल्ड बैंक, सब कुछ मिलके, IMF, वो सब मिलके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं. कन्वर्ज विद IFRS एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड कंपनीज. इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास कौन कौन है? AS1 जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील कर रहा है. AS2 is dealing with inventories. AS3 is dealing with cash flows. AS9 is dealing with revenue recognition. AS10 is dealing with property, plant and equipment. AS22 is dealing with accounting on taxes on income. Okay, accounting equation मैंने आपको बताया, asset is equal to what? Liability plus capital. Interpretation क्या हो रहा है? Asset increases on debit side, liability increases on credit side. बैलेंस शीट का asset यानी बेसिकली क्या है? वो डेबिट है. बैलेंस शीट का लायबिलिटी यानी वो बेसिकली क्या है? क्रेडिट है. करेक्ट. कैपिटल इंक्रीजेस द क्रेडिट साइड. एक्सपांडेड इक्वेशन आई हैव ऑलरेडी सेड, नीड नॉट वरी अबाउट दैट. डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री आपको पता है. डबल एंट्री में क्या है? दो चीजें हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट. कितने अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली 3, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. रियल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सर वही समझ में मुश्किल हो जाता है. रियल मतलब पेन रियल है. पीयूष राणा रियल है, लेकिन पीयूष राणा इंसान है. पेन भी है, पीयूष राणा भी है, लेकिन फर्क क्या है? ये चीज है और ये इंसान है. बराबर है. तो अगर आप, एक मिनट, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? पेन लेना पड़ेगा. राइट, देखते हैं. तो सिंपल सी चीज है, देखो कि अगर आप थिंग्स के साथ डील कर रहे हो, THINGS, उम्र हो गई रे मेरी, है ना, तो वो क्या है? रियल अकाउंट. एनीथिंग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वैसी जो चीजें है वो कहाँ पे आती है? रियल अकाउंट में आती है. राइट. अगर आप पर्सन के साथ, अगर आप इंस्टीट्यूट के साथ, ओके, अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे हो, राइट, तो दे कम अंडर द हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट. राइट. यार कोटक अच्छा सर्विस देती है, सो एंड सो कॉलेज अच्छा है यार, मुझे उसने एडमिशन दिया. तो क्या बिल्डिंग को हाथ आए थे एडमिशन देने के लिए? नहीं. आपको एडमिशन दिया किसने? उस बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले स्टाफ ने. अरे ये हॉस्पिटल अच्छा है. अच्छा बुरा कौन होता है? इंसान होता है ना. लेकिन अच्छे बुरे की लेने देने की क्वालिटी आपने हॉस्पिटल को दे दी. करेक्ट. दैट्स व्हाई नॉर्मल इंडिविजुअल, institutes, organization, association of persons, they all come under the head of personal expenses. Okay, and remaining, अगर आपका कोई expense है, अगर आपका कोई income है, ओके, या आपका लॉस है, और अगर आपका गेन यानी क्या है? प्रॉफिट है, तो ये दोनों भी किस में आते हैं? किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट. ओके, ये क्या हो गया? इसको लो, नॉमिनल अकाउंट. रियल. सो रियल अकाउंट क्या बोल रहा है? चीजों के साथ. पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है? इंसानों के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा है? इनकम्स के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, प्रॉफिट्स के साथ या लॉसेस के साथ मैं डील करने वाला हूं. राइट. आई होप आई एम क्लियर. सो देखो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट. कर लेते हैं वापस अपना लेजर पॉइंटर. ओके, सो ड्यूअल एंट्री क्या बता रहा है?
एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, फीचर्स टू-फोल्ड इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, मेरा इनकम आपका एक्सपेंस, आपका इनकम मेरा एक्सपेंस, बराबर है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यस। यदि सिंगल अकाउंट सिर्फ एक ही इफेक्ट कंसिडर कर रहा था तो मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है वो ढूंढने के लिए दोचा होता था। क्या सर कुछ भी, मेरे पापा सब्जी बेचते, उनको तो रोज का प्रॉफिट रोज मिल जाता है, लेकिन क्या वो डेबिट क्रेडिट में आता है? नहीं। वह सब कुछ पैसा आया तो आपने प्लस कर दिया, गया तो आपने माइनस कर दिया, लेकिन आने में मेरे ससुर से भी आया, मेरे कस्टमर से भी आया। जाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स के लिए भी दिया और मेरी बीवी को भी दिया शॉपिंग के लिए। लफड़ा है ना। तो बिजनेस का प्रॉफिट या बिजनेस का लॉस कितना मुश्किल हो जाता है सिंगल एंट्री में, इसीलिए डबल एंट्री की जरूरत पड़ी। ओके, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एडवांटेज क्या है भैया? एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहा है। गोल्डन रूल आई हैव ऑलरेडी सेड कि पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है? चीजें बिजनेस में या तो आती है या तो बाहर जाती है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, राइट। नाउ स्पीकिंग अबाउट द प्रोसेस, व्हेनेवर एनी ट्रांजैक्शन हैपेंस, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल में। सो जर्नल एंट्री को एक नाम है जर्नल बुक को, क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम रिकॉर्ड। जर्नल बुक को नाम क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम रिकॉर्ड। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग, फीचर्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंप्लीट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आप उसमें नरेशन भी लिख रहे हो जर्नल एंट्री जब लिखते हो तब, बराबर है। बेसिस फॉर लेजर पोस्ट, जर्नल से ही लेजर में गए हुए हैं। फॉर्मेट क्या है इसमें? तो डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, लेजर फोलियो आता है, डेबिट अमाउंट आता है, क्रेडिट अमाउंट आता है। कर चुके हो जर्नल एंट्रीज, राइट, एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया गया, आया क्यों आया? मालिक ने कैपिटल दिया, ही इज द गिवर, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यस। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर है, कैश है, दिखता है छू सकते हैं, हाँ। कैश दिखता है छू सकते हैं, हाँ। फर्नीचर आया गया, आया, कैश आया गया, गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, डन। पेड सैलरी, सैलरी पे किया, सैलरी है, पैसा है। सैलरी दिखता है छू सकते हैं? नहीं। पैसा दिखता है छू सकते हैं? हाँ। तो पैसा आया गया, गया, क्यों गया? सैलरी के लिए गया, तो इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट। पैसा गया, रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यस, सिंपल। लेजर, यहां से सब कुछ कहां गया? लेजर में गया। सो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, डिटरमिनेंट ऑफ अकाउंटिंग बैलेंस। टाइप्स ऑफ लेजर आपके पास सेल्स लेजर है, परचेस लेजर है, जनरल लेजर है, राइट। लेजर पोस्टिंग आपको पता ही है, यहाँ से डेबिट तो वहां गया टू सो एंड सो, दूसरे में क्रेडिट बाय सो एंड सो, ओके। सब्सिडियरी बुक, तो सब्सिडियरी बुक क्या है? द बुक्स विच आर सपोर्टिंग द लेजर, ओके, दे आर नोन एज सब्सिडियरी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सब बुक्स है वो। बुक्स मेंटेन फॉर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन। परचेज रोज करते हो ना, सेल्स रोज करते हो ना, रिटर्न्स भी रोज आते जाते रहेंगे, बराबर है। कैश रोज का चलते रहता है, करेक्ट। सो ये सारी एंट्रीज इन बुक्स में होती है। तो परचेज बुक है, क्यों? क्रेडिट परचेज के लिए। सेल्स बुक है, क्यों? क्रेडिट सेल्स के लिए। परचेज रिटर्न बुक किसके लिए? सप्लायर को जो आपने रिटर्न दिया वो। सेल्स रिटर्न बुक्स आपके कस्टमर ने जो आपको रिटर्न दिया वो। कैश बुक सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल बुक कितना मिलने वाला है वो। बिल्स पेएबल बुक कितना हमने दिया है वो, बराबर। इनसे सारों से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपके सारे लेजर बराबर है तो देन योर ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज टैली। इफ एट ऑल योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गेटिंग टैलीड, जो भी डिफरेंस है वो कहाँ जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। क्यों हुआ? आई लव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? छोड़, जितना भी डिफरेंस है फिलहाल तो सस्पेंस में डाल, बाद में चेक करते बैठेंगे और टैली कर देंगे, ओके। एडवांटेजेस, व्हाट इज इट?
एरर ऑफ डिटेक्शन। कुछ भी एरर हुआ है, कुछ भी गलती हुआ है तो आपको पकड़ में आना चाहिए, इसीलिए ट्रायल बैलेंस जरूरी है। इजी प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है तो अकाउंट में मेरे कोई झोल नहीं है, आई कैन इजीली गो फॉर द फाइनल अकाउंट्स। लिमिटेशंस डज नॉट डिटेक्ट ऑल एरर, अगर आपने अमाउंट ही गलत डाल दी हो तो टैली तो हो रहा है लेकिन गलत अमाउंट पे हो रहा है, राइट, नॉट ऑल। कंपेंसेटिंग एरर्स रिमेन अनडिटेक्टेड, कंपेंसेटिंग एरर्स क्या है, इसकी टोपी उसके सर। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बताऊंगा, डोंट वरी, आगे आएंगे अब लोग। फाइनल अकाउंट्स तो एट द एंड जो बनते हैं वो, आई गेस इतना तो आपको सबको नॉलेज है कि फाइनल अकाउंट्स हम लोग 11वीं से एमकॉम तक बनाया है अलग अलग लेवल का, राइट। वी स्टार्टेड विद सोल ट्रेडर, देन वी एंडेड विद पार्टनरशिप अकाउंट, एंड देन इन डिग्री कॉलेज हम लोग आए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, पार्टनरशिप फॉर्म का, एडमिशन, रिटायरमेंट, दैट डिसोल्यूशन अलग आया, कंपनीज अकाउंट के फाइनल अकाउंट आए, बैंक के आप लोगों ने किए एमकॉम में, इंश्योरेंस ने आप लोगों ने किए एमकॉम में, हाउसिंग सोसाइटीज का आप लोगों ने किया है एमकॉम में, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। सो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट आर वेरी फ्रैंक विथ यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैम। डन, बैलेंस शीट बनी, उसमें असेट आए, लायबिलिटी आए। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज, डेप्रिसिएशन क्या है, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, व्हाई, बिकॉज ऑफ द यूज एंड टेयर। लेकिन कौन से असेट डेप्रिसिएट होते हैं, ओनली एंड ओनली द फिक्स असेट्स, राइट। यस, परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, वेयर एंड टेयर यानी कि यूज, ऑब्सोलेसेंस यानी कि डैमेज, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बाद होना ही है, एक्सीडेंट्स की वजह से होता है। मेथड्स कौन सी है, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि आपको परसेंटेज दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे आप लोग उसको चार्ज कर दोगे, बराबर है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज डैश, स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज डैश। कहाँ गया पेन, यहाँ है। It is also known as original cost method. What is it? Original cost method. या तो फिर it is also known as fixed installment method, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता नहीं है। और आपने एक फॉर्मूला सीखा है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट इज इट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, राइट, अपॉन, अरे वाह, पेन लिखने मेरे को जम गया है थोड़ा बहुत, उतना प्रॉब्लम नहीं है, हैंड राइटिंग सुधरेगी नहीं, वो तो ऐसी रहेगी, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका काम आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे आपको जो भी WDV मिलेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर नहीं समझा, थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। चलो अपन एक ऐसे असेट ले लेते हैं 10,000 का, राइट। ये एक ले लिया मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये मैंने ले लिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, करेक्ट। आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10%, तो पहले साल का 1,000, यानी एक साल बाद अगर मैं बेचने जाऊं तो कितने में बेचूंगा, 9,000। दूसरे साल का 1,000, यानी 2 साल बाद मैं बेचने जाऊं तो कितने में बेचूंगा, 8,000। तीसरे साल में 1,000, बराबर है, यानी 3 साल बाद अगर मैं बेचने जाऊं तो कितने में बेचूंगा, 7,000। ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया, ओरिजिनल कॉस्ट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिंगचाक पूजा एकदम एक ही मेथड में मार दिया। WDV में क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। पहले साल का 1,000 ही रहेगा, नो डाउट इन दैट, बट 9,000, दूसरे साल में आई विल बी चार्जिंग ऑन दिस, सो 9,000 इंटू 10% विल बी हाउ मच, 900, यानी आफ्टर 2 years माई वैल्यू विल बी हाउ मच, 8,100। तीसरे साल में किस पे मारूंगा, 8,100 पे, यानी कितना आएगा, 810, तो 7,290 एंड सो ऑन। सो अगर ध्यान से देखो तो पहले 1,000, दूसरे साल में 900, तीसरे साल में 810, बराबर। तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। आपने डेप्रिसिएशन किस पे किया, WDV पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, WDV मेथड। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखते हो तो कम होते जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। या रिड्यूसिंग का दूसरा एक नाम क्या है, डिमिनिशिंग, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, समझा।
यस, आगे एडवांटेजेस, प्रॉफिट है क्या लॉस है वो मुझे जानना जरूरी है, बराबर। एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जरूरी है। तो ट्रू प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, करेक्ट असेट वैल्यू, बराबर, फंड क्रिएशन फॉर रिप्लेसमेंट इज मस्ट, यस इज मस्ट, ठीक है। आगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन, आप लोगों ने अलग अलग मेथड सीखी हुई है, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक अपने को मिलता है, कैसे मिलता है, तो हमने फीफो सीख किया, हम लोगों ने वेटेड एवरेज किया, लिफो था बंद हो गया, बराबर, तो उसको पैकअप कर दिया। करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन एक्यूरेट बैलेंस शीट के लिए जरूरी है। मेथड इज फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओल्ड स्टॉक इशूड फर्स्ट, लिफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेटेस्ट स्टॉक इशूड फर्स्ट, वेटेड एवरेज यानी कि एवरेज कर दिया, खत्म कर दिया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। एरर्स होते हैं, एरर्स यानी गलती, गलती जानबूझ के करता है क्या इंसान, नहीं, गलती तो हो जाती है, बराबर है। तो कौन सी गलती है, एक एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट कर दिया, भूल गए, बराबर। ओमिशन दो तरह के हैं, आपने एक इफेक्ट दिया दूसरा नहीं दिया तो दैट इज पार्शियल ओमिशन, आपने पूरी तरह से रिकॉर्ड ही नहीं किया तो दैट इज कंप्लीट ओमिशन। डन। एरर ऑफ कमीशन, तो एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पे क्या किया आपने, गलत पोस्टिंग कर दी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, गलत अकाउंट में ही डाल दिया, रियल की जगह पे पर्सनल, पर्सनल की जगह नॉमिनल, नॉमिनल की जगह रियल, ऐसा कुछ कर दिया, लफड़ा। बेसिक से अगर क्लियर नहीं तो बंदा गलत ही रिकॉर्ड करने वाला, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड कंपेंसेटिंग एरर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, टू विकास, बराबर। तो इफेक्ट किस पे पड़ा, विकास पे, प्रकाश बेचारा ऐसे ही रह गया, प्रकाश के पास वापस अगले महीने में पैसा दे, तूने पैसा नहीं दिया, चम्मार मारेगा अपने को, दिया तो सही है क्या, ये ले प्रूफ, आज की तारीख में तो जीपे का प्रूफ आ जाता है, ट्रांजैक्शन आईडी, राइट, भेज देगा। तो उस केस में क्या हुआ, गलती किसने की, एक अकाउंट का गलती दूसरे ने भुगतना है, दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। ओके, तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे, बराबर, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स दिखे, गोल्डन रूल्स सीखे, one line fact, journal is the book of original entry, ledger is the principal book, trial balance check the arithmetic accuracy, trading account determines gross profit, profit and loss determines net profit, balance sheet shows the financial position, FIFO assumes oldest stock sold first, depreciation is reduction in the value of asset. I hope कि आपको अकाउंट्स का बेसिक पूरा निचोड़ के दे दिया है। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, keep going. We'll be happy to see many assistant professors in future if I am helping them with my videos. Okay, चैनल अपना ही है तो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए शर्माना मत। ओके, मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करो, क्योंकि आई डाउट के नेटसेट के वीडियोस कॉमर्स के ज़्यादा है यूट्यूब पे, उसमें अगर अपना हाइप में आ गया तो अच्छा हो जाएगा, है, मदद हो जाएगी लोगों की। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे जानने वाले लोग जानते हैं। या थैंक यू। So my would